Friends, I'm Hari Kumar from your English language classes, and today I have a very interesting topic, and the name of the lesson is The Violet, lesson number 5th of Standard 6 English course book. So first of all, we will see some of the boxes which are here. Okay, so the first box is saying, "Hey, what happened? Hey, what happened?" The girl is saying, "Hey, what happened? क्या हुआ?" So the another girl is saying from the next box, "My classmate cannot stop praising herself." There is a classmate of this girl and she is trying to praise herself more and more. Okay, so it's sure and we know very well that we should not praise too much about ourselves. Okay, because the people who praise, the people who praise themselves, okay, they are just not good in manner. Okay, they are just not good in manner. So here we are just getting that my classmate cannot stop praising herself. उसका एक classmate है जो अपने आप को praise करने में वो stop नहीं कर पा रही है. Then again this girl is asking why? क्यों? What is the reason that your friend is just not going to stop to praise herself? She won the inter-school singing competition and has been showing off ever since. Now the girl is saying that she won the inter-school सिंगिंग कंपटीशन, वह इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन का वो प्रतियोगिता जीत चुकी है जिसके कारण से वो अपने आप को काफी ज्यादा शो ऑफ कर रही है. ओके, नाउ द अगेन द गर्ल इज सेइंग शी शुड लर्न टू बी हम्बल लाइक द वायलेट फ्लावर. ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर द गर्ल इज सेइंग दैट शी शुड लर्न टू बी हम्बल लाइक द वायलेट फ्लावर. उसे एक बिल्कुल विनम्र होना चाहिए, बिल्कुल वायलेट फ्लावर के जैसा. एज वी कैन सी द वायलेट फ्लावर दैट इज अ वेरी हम्बल, दैट इज अ वेरी पोलाइट. सो डेफिनेटली वी मस्ट बी एज हम्बल सच एज वायलेट फ्लावर. सो वी विल सी दिस चैप्टर and this chapter is a very interesting as I have told you in beginning guys. So now we will see the launch pad. The Violet is a poem written by English poetess Jane Taylor. Okay, तो सबसे पहले हम गाइस जानने का प्रयास करते हैं. As we can see here the poem is written by English poetess Jane Taylor. Okay, हम लोग जब नीचे स्टैंडर्ड में पढ़ा करते थे नर्सरी में, व्हेन वी यूज्ड टू स्टडी इन नर्सरी क्लासेस एट दैट टाइम वी यूज्ड टू सिंग, वी यूज्ड टू रैम, ओके, सच एज ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. सो द पोएम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार also written by Jane Taylor. Understood now? So the poem describes the violet flower. The poem describes the violet flower and how the simple pretty flower embodies the qualities of modesty and the humility. With the help of this poem, we will get that we must be humble, we must be very simple, we must be full of the qualities, we must be the humility. So if we have these are the natures, it shows, it is the good identification of particular people. Okay, so यह कविता हमें बताता है, violet flower को describe करता है कि how the simple pretty flower embodies the qualities of modesty and humility. कि ये कितना सिंपल है, कितना प्रेटी फ्लावर है, इतनी इसकी क्वालिटीज ऑफ मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी करती है. और ये जैन टेलर के द्वारा लिखा गया इस कविता को, ठीक है, जो एक पोएटिस है. नाउ वी आर गोइंग टू सी सम स्टैंजास. एज वी जस्ट नो दैट दिस चैप्टर, दिस पोएम हैज 4 स्टैंजास and each stanza has on importance, each stanza has on message. So when we read these stanzas, definitely we will try to understand some of the difficulties word, which is bold black, that is the difficulty word. Okay, so see guys. The violet. Down in a green and shady bed a modest violet grew. Its stalks was bent, it hung its head as if to hide from view. And it was a lovely flower, its color bright and fair, it might have graced a rosy bower in a state of hiding there. Yet thus it was content to bloom in modest tints arrayed, and there diffuse a sweet perfume within the silent shade. Now the last stanza is here.
Then let me to the valley go, this pretty flower to see, that I may also learn to grow in sweet humility. Okay, and this poem has been composed by Jane Taylor. Now we have studied the stanza, all stanzas of this poem. Now we are just going to explain, okay, one by one, guys. So we will try to understand the violet. What is the mean of the violet? So violet is a flower. Violet जो है एक फ्लावर है, एक फूल है, ठीक है. एंड ऑल्सो इट इज अ कलर, यह एक कलर भी है. वायलेट इज ऑल्सो कलर. अगर मैं बात करता हूं ऑरेंज के बारे में, ऑरेंज इज फ्रूट, ऑरेंज एक फल भी है और ऑरेंज एक कलर भी है, ठीक है. तो उसी प्रकार से इन द सेम वे वायलेट इज फ्लावर एज वेल एज इट इज ऑल्सो अ कलर. गॉट इट? नाउ down in green and shady bed, a modest violet grew. Its stalks was bent, it hung its head, as if to hide from view. The Jane Taylor यानी कि पोएटिस हमें बताना चाहती इस स्टैंजा के माध्यम से, she wants to express, she wants to describe, okay, with the help of this stanza to us, that down in grey and shady bed there is a land, और उस लैंड में एक छोटा छोटा सा ग्रीन कलर का, हरे हरे कलर का घास लगे हुए हैं, जैसा कि आप इस फिगर पे देख पा रहे होंगे. देखो इस प्रकार से बुशेस लगा हुआ है, ग्रीन ग्रासेस लगा हुआ है. ठीक उसके ऊपर में ये वायलेट फ्लावर है, राइट. ये वायलेट फ्लावर है जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे. सो डाउन इन अ ग्रीन एंड सैडी बेड, नीचे जमीन पे, डाउन नीचे जमीन पे, इन अ ग्रीन मतलब हरे कलर में, एंड सैडी बेड ठीक उसके ऊपर, बेड का मतलब बिस्तर नहीं, मतलब घास के ऊपर ये फैला हुआ है वायलेट फ्लावर. अ मॉडेस्ट वायलेट ग्रीव, एंड द फ्लावर विच इज गोइंग टू टॉक अबाउट वायलेट, इट इज़ अ वेरी मॉडेस्ट, ये बहुत ही हम्बल है, बहुत ही विनम्र है, ठीक है. और ये बहुत ही विनम्र तरीके से वायलेट जो फ्लावर है वो बहुत ही मॉडेस्ट, बहुत ही हम्बल तरीके से वो ग्रो किया है, ठीक है. इट्स स्टॉक वॉज बेंट, इट हंग इट्स हेड एज इफ टू हाइड फ्रॉम व्यू. इसका जो स्टॉक्स है, तो स्टॉक्स का मतलब क्या होता है गाइज? स्टॉक्स का मतलब होता है, मान लीजिए कि ये आपका फ्लावर है, इस प्रकार से जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये फ्लावर है, ठीक है. और यहाँ से इसका एक स्टेम निकला हुआ है, और यहाँ से इस प्रकार से इस तरह से आपका है, ठीक है. इट्स अ स्टॉक वाज बेंट, इसका जो तना है, इसका जो स्टॉक है ये झुका हुआ है. इट हंग इट्स हेड, और उसका जो हेड है यानी कि ये वाला जो पार्ट है, हेड है, ये बिल्कुल मतलब हंग किया हुआ है. एज इफ टू हाइड फ्रॉम व्यू, मानो कि ऐसा लगता है कि वह अपने किसी अनदर व्यूअर से, अनदर ओपोनेंट से, अनदर किसी पीपल से वह अपने आप को हाइड करना चाहता हो, अपने आप को छुपाना चाहता हो. तो सिंपल तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे कि एक वायलेट फ्लावर है जो लंबी लंबी घासों के ठीक ऊपर, ग्रीन कलर के ग्रास पे ठीक उसके ऊपर वो फैला हुआ है, उसके ऊपर ले किया हुआ है, और ये बहुत ही हम्बल तरीके से, बहुत ही विनम्र तरीके से वो ग्रो किया है. इट्स स्टॉक वाज बेंट, और इसकी जो तना है वो बिल्कुल मुड़ी हुई है, और इसका जो हेड है वो काफ़ी ज़्यादा हंग किया हुआ है, ठीक है. एज इफ टू हाइड फ्रॉम व्यू, मानो कि ऐसा लगता है कि वह किसी अनदर ओपोनेंट से, किसी अनदर बंदा से या पीपल से वह किसी से हाइड करना चाहता हो, ठीक है. So guys, now we are just going to see the second stanza that is here. And it was a lovely flower, its color bright and fair, it might have graced a rosy bower instead of hiding there. It was a lovely flower. If you talk about the lovely flower, if you talk about the violet flower, it is absolutely lovely, it is absolutely very pretty. इट्स कलर ब्राइट एंड फेयर. इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि इसका जो कलर है ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ही ज़्यादा फेयर है, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर फूल भी है. सो ओके, यहाँ पे जैसा कि बताया गाइस कि इट वॉज ए लवली फ्लावर, ये बहुत ही सुंदर फूल था,
ठीक है। इट्स कलर ब्राइट एंड फेयर, इसकी जो कलर है बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ही ज़्यादा फेयर है। इट माइट हैव ग्रेस्ड अ रोजी बावर इन स्टेट ऑफ हाइडिंग देयर। और इसने क्या किया, एक रोजी बावर। तो सबसे पहले आप समझने का प्रयास करेंगे कि रोजी बावर क्या होता है। जब आप किसी गार्डन में जाते हो तो इस प्रकार से आपको क्या होता है, मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे ठीक उसके ऊपर मतलब बहुत अलग अलग किस्म के डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर आर जस्ट लाइंग हियर, ओके, above this pole, okay, and when we just enter from this way, okay, at that time we feel very rosy bower। हम इस जगह पे क्या करते हैं, बहुत ही रोजी बावर फील करते हैं। तो यहाँ पे क्या बता कि इट माइट हैव ग्रेज्ड, तो ग्रेज्ड का मतलब क्या होता है, डेकोरेटेड और एडेड ब्यूटी। मतलब जब इस प्रकार का दृश्य को जब आप देखते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा डेकोरेट करता है ब्यूटी को, ये ब्यूटी को मॉडिफाई करता है, उसको एड करता है, ठीक है, मतलब सुंदरता को और बढ़ाता है और जगमगाता है। बावर, what is the meaning of bower? As we can see here, okay, a pleasant shady place under trees in a garden or wood, ठीक है। अ प्लीजेंट सैडी प्लेस, एक ऐसा प्रकार का सैडी प्लेसेस जहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट हो, ठीक है, वो ट्रीज के नीचे एक गार्डन में या वुड में, उसी को कहते हैं रोजी बावर। मतलब आप इस एरिया से अगर आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको सैडी मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा सुखद महसूस होगा, ठीक है। इन स्टेड ऑफ हाइडिंग देयर, मतलब छुपने के बजाय। नाउ I'm going to explain about the third stanza that is here, guys. As we can see, it thus it was content to bloom in modest tints arid, and there diffused a sweet perfume within the silent seed. It thus it was content to bloom, ठीक है। अब ये जो वायलेट फ्लावर है, ये वायलेट फ्लावर जो ग्रो किया है, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कंटेंट किया है ग्रो करने के लिए, खिलने के लिए, ब्लूम करने के लिए। इन मॉडेस्ट टेंट्स एरिड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंट्स? टेंट्स का मतलब होता है शेड्स और वेराइटीज ऑफ अ कलर। मतलब इसके जो कलर्स होते हैं वो बिल्कुल, इनके शेड्स का जो कलर होता है बिल्कुल अलग अलग होता है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ अ कलर। और एरिड का मतलब होता है डिस्प्लेड और अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर वे। मतलब जो वायलेट फ्लावर होता है ठीक ग्रीन ग्रास के जस्ट ऊपर में, वह अरेंजमेंट तरीके से होता है, वो बिल्कुल अरेंज किया हुआ रहता है। एज वी कैन सी इन द पिक्चर स्टूडेंट्स दैट ऑल दिस वायलेट फ्लावर आर पर्टिकुलर इन अरेंज्ड वे above the green grasses, and we also can see some of the butterflies are here, okay, and they're just getting the fragrance, they're just getting the scent, okay, from these places. So the stanza number 3 is a very interesting or very important. At thus it was content to bloom in modest tints arid, and there diffuse a sweet perfume within the silent shade. Jan Taylor wants to make us understand with the help of the third stanza that the violet flower is a content to bloom, okay, in modest tints arid. And as we can see above the grass, these all the violet flowers are in decorating way, are in arrangement way, okay, and they diffuse a sweet perfume. And the violet flower is there above the green grasses, and all these violet flowers spread their fragrance in around the area. वो अपने चारों तरफ, अपने एरिया के चारों तरफ वो अपने खुशबू को, अपने स्वीट परफ्यूम को डिफ्यूज करता है, फैलाता है। स्प्रेड और समथिंग ओवर अ वाइड एरिया, दैट इज अ डिफ्यूज्ड, ओके, विद इन द साइलेंट शेड। और अगर उस जगह पे जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा, साइलेंट शेड मिलेगा, ओके। Now the last stanza is here. Then let me to the valley go, this pretty flower to see, that I may also learn to grow in sweet humility. Okay, guys, हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जेन टेलर पोएटिस खुद को कह रही है कि let me to the valley go, मुझे उस वैली के तरफ, मुझे उस घाटी के तरफ मुझे जाने दो। These pretty flowers to see, because he wants to see some of the pretty flowers. Okay, that how is violet flowers, how is that, and how is this I may also learn to grow in sweet humility। मतलब ठीक वायलेट फ्लावर के जैसा, जिस प्रकार से वायलेट फ्लावर के अंदर में, अपने अंदर में प्राउड वो ज़्यादा नहीं करता है, अपने आप को घमंड शो नहीं करता है,
अपने आप को इतना सुंदर होने के बजाय, इतना सुशील होने के बजाय, इतना मॉडेस्ट होने के बजाय इसकी खुशबू इतनी अधिक अच्छी है, ये इतने, इनकी कलर इतने अधिक ब्राइट और फेयर है, इन सारी क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा हम्बल, बहुत ही ज़्यादा पोलाइट तरीके से अपने कैरियर को, अपने फूल को वो ग्रो करता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जैन पोएटेस कहना चाहती है कि मैं उन वैली की तरफ जाना चाहता हूँ जहाँ पे ये सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं और मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, ठीक है, और मैं उसे देख करके मैं ये सीखना चाहती हूँ कि मैं भी एक वायलेट फ्लावर के जैसा, मुझे भी ग्रो करना चाहिए, मुझे भी हम्बल होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, वेरी सिंपल होना चाहिए। हमारे पास अन्य सारी क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी हमें जरा सा भी घमंड नहीं करना चाहिए, जैसा कि इस पोयम में वायलेट फ्लावर को बताया गया। ठीक है, तो गाइज ये हमारा था टॉपिक, इट वॉज द टॉपिक ऑफ द वायलेट। ओके, और आई होप सो दैट यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें गाइज। थैंक यू, टेक केयर।